Hi guys, I am Vivek Kumar Sen and we already have covered 4 lecture of our geomorphology series. Today we will start lecture 5. In previous 4 lecture we have studied continental drift theory, various theories, seafloor spreading theory. Also we have studied geological time scale and Earth's interior structure. So in today's plate lecture 5 we will study plate tectonics. So what is this plate tectonics and how I suddenly come on this topic? It is not a separate topic, but you can say it is a part of previous lecture in which we have studied continental drift theory and seafloor spreading theory. Okay, let's start the lecture. Also, I am sorry for my previous lecture. There was a noise. If you feel some kind of problem, please comment. I will resolve it. So, plate tectonics. What is historical background? You can already watch my previous lecture. Historical background is that continuity, which is first we have seen continental drift theory by two people, F.B. Taylor and Wagner. So you have seen that there were several shortcomings on in these theories. So later came convection current hypothesis by Arthur Holmes. Okay, and at the same time seafloor spreading theory. Okay, what were the evidence? We already have seen jigsaw fit evidence of South America and Africa, and you have seen fossil similarity, structure similarity of soil. So there were many evidences. Please refer to my previous lecture. Okay, now what is a plate? A tectonic plate is a gigantic, irregularly shaped, rigid slab of rock which moves slowly over the atmosphere. Sometimes it is called lithospheric plate. Okay, let us understand with the diagram. Here, this is the crust. Here it is continent. Here it is ocean. So what we find below the ocean, the crust is made up of basalt. That is why it is called basaltic oceanic crust. And on the continent, it is made up of granite. So it is granitic continental crust. Below it, we can say it is magma or lithosphere. So what it is made up of? Plate is made up of whole crust and lithosphere, and it floats over asthenosphere. It is molten, so that's why it floats. Lithosphere floats over asthenosphere. Okay, edges of plate boundary have three types of features. Let us assume this is a plate, so it has boundaries. What are these features? Oceanic ridges along constructive plate margins. You know, constructive plate margins are those which are divergence in nature. Divergence means two plates are getting diverged. So these are diverging. So what it will happen? There will be rising limbs of convective cell. Then when rising limb, then magma will accumulate here, and that's why these two plates get diverged along trenches along convergent or destructive margin. Let us assume there are two plates and both plates are moving towards each other. If they are moving, then we will see there is descending limb. When descending limb, then it will move like this plate will subside under another plate, this plate, and this portion will be called trench. Transform fault. These are nothing but separation fault. Like these are two continents. It moves here, it moves here. Then which the fault which will be formed, it is called transform fault. There are various plates on our Earth's surface. We categorize them into major and minor plates. There are total 7 major plates and several minor plates. We can these are like 14 in numbers, minor plates. So let us count 7 major plates: Pacific plate,
South American plate, North American plate, Antarctic plate, African, Eurasian, and Australian plate. Okay, and similarly various minor plates: Cocos plate, Nazca plate, Caribbean plate, Juan de Fuca plate, Arabian plate, Indian plate, and Philippine plate. These are some of the minor plates. Also, I have highlighted which type of boundary they are sharing. Transfer boundary is highlighted in yellow color. We can see it is found in where near California. It is California, and it is present just attaching with North American plate, and in Caribbean islands there is transform boundary, and also we can found it in like near to Indian plate and Arabian plate. Okay, and divergent boundary is highlighted in red color. So all these red color lines are divergent boundary. You can see this whole big line in between of the Atlantic Ocean is mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge. Similarly, it extends to Indian Ocean and towards it circumference the whole Antarctic plate. Convergent boundary is highlighted in black color. Okay, this will be very important when we will understand what impact they are forming on land forms on Earth's surface. So we have to understand what mechanism is behind these plate movements. So plate tectonics. So we have already seen convective current hypothesis. In that, Arthur Holmes said there are two blocks which are kept on the water, and there is force of heat. When these water gets heated, then what will go this direction and this direction. With that, block will also move in this direction and this direction. So here he also is saying the same thing. Let us first read. Arthur Holmes put idea of heat and mental jet with help of convection current mechanism. Similarly, convection current mechanism I have already told you. So, geologists assume that in a similar manner molten material is circulating deep within the Earth in asthenosphere and even below the asthenosphere. Okay. Also, when magma cools, the material becomes denser and begins to shrink again due to density difference, and slab pull occurs in Bang of zone. ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ क्या है. ये कह रहा है कि यहाँ से हमारा ये लिम्ब बन रहा है जो कि हमें ऊपर मूव कर रहा है, असेंड कर रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारे वो अर्थ क्रस्ट बनती जा रही है, पर यहाँ पे ये सबडक्ट भी हो रही है. ठीक है, इन जगह पे ये सबडक्ट भी हो रही है. तो क्या हो रहा है, जब ये इधर जाके सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे कूल डाउन हो रही है, जिससे कि क्या होता है कि जब ये कूल डाउन हो रही है तो ये जो पार्ट है ये ज़्यादा हैवी हो गया. जब हैवी पार्ट थोड़ा टिल्ट हो गया तो क्या करेगा, ये पार्ट इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे खींच लेगा. इसको बोल देते हैं हम स्लैब पुल फोर्स. ठीक है, एक फोर्स तो ये और एक फोर्स जो मैंने इसमें नहीं लिखी वो आप नोट डाउन कर लीजिए, विद पुश फोर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये रिज बनता जा रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे रिज बनता है तो ये यहाँ से फोर्स लगाएगा. किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो ये अपने आप ही डाइवर्ट होना शुरू कर देगा. तो इसे बोल देते हैं हम रिज पुश फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्स लगते हैं, स्लैब पुल फोर्स और रिज पुश फोर्स. स्लैब पुल क्यों बोला, क्योंकि हम ये यहाँ पे पुल कर रहा है अपनी तरफ, और पुश क्यों बोला, क्योंकि जो रिज है ये अपने आप को संभालने के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए पूरी प्लेट को साइड में सरका रहे हैं. ठीक है, इसलिए. तो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. फर्स्ट इज डाइवर्जेंट और एक्सटेंशनल बाउंड्री और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन. इसको याद रखना, डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव. क्यों, एमओआर में आपने देखा है कि जब मैग्मा नीचे से आता है तो क्या होता है, डाइवर्स तो होते हैं वो, पर उसके साथ साथ यहाँ पे और दूसरे सरफेस बनती चली जाती है. तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन,
ये क्या होता है, लीनियर होते हैं, लीनियर फीचर। एमओआर लीनियर है, ठीक है। स्ट्रेस इज टेंशनल, टेंशनल इन द लाइक force is acting outside this way. Therefore, when continents split, rift valleys are present. जब ये कॉन्टिनेंट है और टेंशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो इसमें क्या होगा, बीच में यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिफ्ट वैली टाइप बन जाएगी, जैसे कि हम कहाँ पे देखते हैं, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। और एमओआर तो अपन ने ऊपर देखा ही है। इट लेड टू साइकिल ऑफ ओशन फॉर्मेशन एंड क्लोजर, दिस साइकिल इज नोन एज विल्सन साइकिल। मैंने बोला है कि ओशन फॉर्म हो रहा है एमओआर पे, पर ये कहीं ना कहीं सबसाइड सबडक्ट भी तो हो रहा है किसी प्लेट के नीचे। तो ये जहाँ पे सबडक्ट हो रहा है और जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो इस साइकिल को हम बोल देते हैं विल्सन साइकिल। दूसरी तरीके की सेकंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। स्ट्रेस इज कंप्रेशनल। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स अपनी मतलब एक तरफ आपस में पास पास आ रही होती है, तो क्या हो रहा है कि ये जो है कंप्रेशनल, या फिर एक ही प्लेट पे हम ये बात करें ऐसे ऐसे पास आ रही है, तो ये कंप्रेस करनी है एक दूसरे को। लिथोस्फीयर इज डिस्ट्रॉयड। मान लो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, ये जो लिथोस्फीयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कोई सी जो भारी होगी इनमें से, मान लिया ये भारी है तो ये सबडक्ट हो जाएगी और इसके जो लिथोस्फीयर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होकर ऊपर मैग्मा फॉर्म कर देगी, ठीक है। मैग्मा की वजह से वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। कन्वर्जेंस रिजल्टिंग इन थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। अब थिकनिंग कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं, ये दो प्लेटें आपस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टकराए तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं फोल्ड हुए, ये फोल्ड हुए, ठीक है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं थिक हो गए, ठीक है। फोल्डिंग मैंने समझा दिया, यहाँ पे फोल्ड हुए इसकी वजह से ये थिकन भी हो गए। देन इन पे हो जाता है थ्रस्टिंग भी। थ्रस्टिंग क्या, व्हेन वन प्लेट राइड्स ओवर द मोर डेंस प्लेट अलोंग अ फॉल्ट प्लेन इट क्रिएट्स थ्रस्टिंग। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे चढ़ गई तो वो क्या कर रहा है, जो दूसरी प्लेट है वो थ्रस्ट लगा रहा है कि ऊपर जाओ, ठीक है, तो उसे बोल देते हैं थ्रस्टिंग। देन टेंथिंग, स्लैब्स ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर डिसेंड इनटू मेंटल। अभी मैंने बोला ना कि जब लिथोस्फीयर ख़त्म होती है तो क्या, दो प्लेट थी, ये इसके नीचे सबडक्ट हुई तो ये जो है यहाँ पे ट्रेंच बन गया, ठीक है। स्लैब ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर डिसेंड इनटू मेंटल, ये पूरा मेंटल में जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे गहराई हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो आपको लगेगा ट्रेंच है। तीसरा, थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। हम देख लेते हैं क्या है ये। व्हेन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्ज, देन what type of landform is formed, Himalayan type. Mountain building, suture zones, like we have suture zones now, IT, FZ, these type of suture zones are formed. Syntaxial fold with crust folds, crust is folded in this manner. Of rhyolite suit remains of past volcanic activity. अगर कोई पहले वोल्केनो था वहाँ पे तो उसकी एक्टिविटी वहाँ पे रिमेन्स, मतलब इस जगह पे रहेंगे। और दूसरा अर्थक्वेक, ऑब्वियस है प्लेट मूव कर रही है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही, ठीक है। ये तो तीनों में ही सेम है। कॉन्टिनेंट और ओशन जब कन्वर्ज करते हैं तो कॉर्डिलेरियन जो माउंटेन्स हैं उस तरीके का कुछ बनता है, वोल्केनिक आर्क्स होती हैं। जैसे कहाँ का एग्जाम्पल ले लें आप, रॉकीज़ का ले लें, तो वहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। व्हेन इट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट इज़ ओशनिक क्रस्ट, तो व्हाट विल हैपन, द हेवियर विल सबडक्ट, oceanic being heavier, it will subduct below continental crust. Okay, it is going like this. Then what will happen here, all the material which will reach up to the mantle part
it will heat up and warm, and it will change its property. Then all the magma with pressure will come on to the surface, but the rock, yeah, the magma, it will change its property. It will change from basalt to andesite. तो इससे क्या समझे, पहले तो जो ओशनिक क्रस्ट थी वो बेसाल्टिक थी, पर ये जब नीचे गया इस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये पार्शियल मेल्टिंग हो गई और ये एंडेसाइट में कन्वर्ट हो गया। जब एंडेसाइट में कन्वर्ट हुआ ये ऊपर आया, वोल्केनिक माउंटेन बने, और वो वोल्केनिक माउंटेन किस चीज़ से बने हैं, एंडेसाइटिक लावा से। ये मेन बात लिखी है। Then it is important mountain building, volcanic mountains we have seen, ophiolites, earthquakes in many of zone. I already have said earthquake तो होंगी। ओशनिक कॉलिजन में क्या होगा, ओशनिक कॉलिजन में दोनों हैवियर हैं, पर इनमें से कोई ना कोई ज़्यादा हैवियर होगी, वो सबडक्ट करेगी, और वो सबडक्ट करेगी तो ऊपर वोल्केनिक माउंटेन्स बनेगी। वोल्केनिक माउंटेन्स बनेगी तो ओशन सरफेस के ऊपर हमें थोड़ा बहुत लैंड सरफेस दिखेगा, जिसे हम बोल देंगे आइलैंड आर्क। तो एंडेसिटिक लावा प्रीडोमिनेट्स आइलैंड आर्क ऑफ और कर्व्ड लाइन ऑफ वोल्केनोज एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फिज्म एंड अर्थक्वेक, शैलो टू डीप फोकाई, ये सब होगा। ट्रेंच भी बनेगी, क्यों, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सब्साइड कर रही है, तो ट्रेंच बन गई। मेटामॉर्फिज्म भी होगा, क्यों, जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, दोनों हैवियर हैं तो वो प्रेशर लगाएंगी। दूसरा, जब ये प्लेट हैवियर प्लेट सबडक्ट करेगी नीचे तो टेम्परेचर भी हाई होगा, तो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस भी होगा, और वोल्केनिक एक्टिविटी तो मैंने आपको समझाई दी है। ट्रेंच कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट में, ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि दोनों ही इसमें लाइट वेट हैं, ये आपस में टकराएंगे और फोल्ड हो जाएंगे। तो इसमें अधिकतर जो फोल्ड वाला क्राइटेरिया होता है, फोल्ड हो गए और फोल्ड माउंटेन बन गए, इसमें वोल्केनिक माउंटेन्स हमें नहीं मिलते। पर जो पास्ट अगर कोई रॉक है जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो वो हमें वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेंच, ये मैंने जो मैप दिया है ये मेरे लिए मैंने ट्रेंच की वजह से दिया है। अभी आपने ऊपर का मैप देखा, एक बार और देख लीजिए, इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री कहाँ पे है। कन्वर्जेंट बाउंड्री आप देख सकते हैं इन द व्हाट इज दिस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, है ना। और इधर भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक वेट व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो ट्रेंच कहाँ पे, यहाँ पे कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे भी कन्वर्जेंट है और यहाँ पे भी कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे हमें ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है। लेट अस सी ऑल्सो, आप ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे हमें ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है। First of all, we will start from Western Pacific Ocean, Japan Trench, Ryukyu Trench, Java Trench, Mariana Trench, and Kurile Trench. All these are present in Western Pacific because here the boundary is convergent. मैंने बताया कन्वर्जेंट है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होगा, और जो गैप बनेगा वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि बहुत ही गहराई हो, तो ट्रेंच, इसलिए हमने उसे बोल दिया ट्रेंच। सिमिलरली आप इधर देखिए, पैरो चिली ट्रेंच, ठीक है, पुएर्टो रिको ट्रेंच, अलूशियन ट्रेंच, ये सारे कन्वर्जेंट बाउंड्री पे हैं। ये कर्मादेक टोंगो ट्रेंच, ओके। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और स्ट्राइक स्लिप बाउंड्री और स्लाइडिंग बाउंड्री। व्हेन टू प्लेट्स neither diverge nor converge but moves in opposite direction or parallelly, then we say it transform plate boundary। कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, सैन एंड्रियास फॉल्ट में। कैसे, ये एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका कैलिफोर्निया और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो क्या होता है कि ये प्लेट इसके पैरेलली मूव कर रही है, तो इस वजह से ये फॉल्ट जो बना है इस यहाँ पे होगा,
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का टॉपिक अभी ख़त्म हो गया। इसमें लास्ट चीज़ देख लेते हैं, हॉटस्पॉट्स। ऑन अर्थ सरफेस देयर आर अबाउट 50 to 100 hotspots. These are individual sites of upwelling material arriving at the surface from interior of the earth. Example, Hawaiian volcanoes and Reunion hotspot. तो ये क्या होगा, अभी हमने देखा कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके नीचे कन्वेक्टिव करंट है जिसकी वजह से ये डाइवर्ज और या फिर कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, पर कहीं ना कहीं परमानेंट जो हॉटस्पॉट हैं वो भी प्रेजेंट हैं। वो क्या करते हैं कि ये हॉटस्पॉट है और यहाँ से मैग्मा राइज कर रहा है, तो ये प्लेट के बीच में ही कहीं ना कहीं वोल्केनो हमें दिख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए हवाईयन वोल्केनो। ये कौन सी प्लेट है? ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट में क्या होगा, नीचे कहीं नीचे कहीं हॉटस्पॉट होगा तो मैग्मा राइज करेगा, मैग्मा राइज करके यहाँ पे आइलैंड्स बना देगा। ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड्स। तो ये हमने बोल दिया, मतलब इसका नाम दिया है हमने हवाईयन आइलैंड्स। ओके, ये किसी उसकी वजह से नहीं है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की वजह से, बस वहाँ पे हॉटस्पॉट है जहाँ से कि लावा, जहाँ पे भी मैग्मा बाहर आ रहा है और आइलैंड्स बन जा रहे हैं। सिमिलर रीयूनियन हॉटस्पॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है जिसकी वजह से हमारा डेक्कन पेनिनसुला फॉर्म हुआ है। ये जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब उसमें ये सब पढ़ेंगे कि रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से कैसे कैसे डेक्कन पेनिनसुला फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये हुआ आज के लेक्चर का सीन। पिछले लेक्चर में जो प्रॉब्लम थी वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा इसमें जो भी डाउट हो या अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। और थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।